الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آج 8 اگست اور اگست کے مہینے کی مناسبت سے آئندہ جمعہ ہو گئے 15 اگست ہوگی غالباً. تو اگست اور خاص کر 14 اگست کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے سن رکھی ہیں بڑے عرصے سے، بلکہ ہر کوئی بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہے، لیکن وہ بس ایک قول کے طور پر، ایک محاورے کے طور پر، ایک کہہ لیں کہ بس لکھت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. ان کا ریئلٹی، حقیقت سے کیا تعلق ہے یا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس پر ہم نے اکثر طور پر غور نہیں کیا. یہ ملک پاکستان اللہ نے ہمیں دیا 14 اگست 1947 کو، اور یہ مشترکہ جد و جہد تھی علماء کرام کی اور قائد اعظم کی، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی جد و جہد کی، اللہ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن الحمدللہ یہ ٹکڑا، یہ خطہ، یہ مبارک سرزمین ہمیں مل گئی، اور اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اور یہ خطہ 2 ٹکڑے ایسے ہیں جن کی بنیاد اسلام پر ہے. ایک مدینہ طیبہ، ریاست مدینہ طیبہ، اور دوسرا پاکستان. مدینہ طیبہ کا اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ بھی پاکستان کا ترجمہ ہے، تو پاکستان کہہ لیں کہ مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے، پاک سرزمین. مدینہ طیبہ بھی یہی ہے کہ پاکیزہ شہر. تو یہ دونوں اسلام کی بنیاد پر خالصتاً ہمارے وجود میں آئے. پاکستان کے حصول کا بھی اصل مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ.
यही नारा था कायदे आज़म का, यही नारा था बच्चे बच्चे का, यही फिक्र और सोच थी इकबाल मरहूम की। तो बारकफ उन हजरात की फिक्र, उनकी सोच, उनका तदब्बर, उनकी जिद्दोजहद, उनकी लगन और उनकी कुर्बानियों के सदके से अल्लाह ने हमें मुल्क अता फरमाया। और इसका हमें अंदाजा ही नहीं है। हम वैसे रह रहे हैं लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं है कितनी बड़ी नेमत है कि जो लोग रह गए हैं वो कितनी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, कितनी उनकी जिंदगी अजीरन है, हमें पता ही नहीं है। हम कितने बेफिक्र हैं, कितने आजाद हैं, कोई टेंशन हमें नहीं है। किस लिहाज से? दीनी लिहाज से, हमारी नमाज के लिहाज से, हमारे रोजे के लिहाज से, हमारी इबादत के लिहाज से, हमारी अजानों के लिहाज से, हमारे जुमे के लिहाज से, हमें किसी भी दीनी काम के लिहाज से हमें परेशानी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बेचारे रह गए उन्हें अपना हिंदुस्तानी प्रूफ करना, इंडियन प्रूफ करना इतना मुश्किल है कि बसा औक़ात उनको अपने दीन की कुर्बानी देनी पड़ती है। बसा औक़ात उनको मुदाहनत से काम लेना पड़ता है। तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं है। तो बाकी उन लोगों ने बनाया है, इसको तकसीम किया, अल्लाह ने हमें दे दिया, और अब हमारी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि हम इसको बचाएं, इसको तरक्की की तरफ ले जाएं, इसकी आबियारी करें, इसकी तरक्की के लिए जितनी मुमकिन कोशिश हमसे हो सकती है हमारे इख्तियार के मुताबिक हम करें। असल तकाजा तो ये है, लेकिन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो हम सबको पता है, हम सबको पता है। तो बारकफ तो कायदे आज़म मरहूम के जो 3 अल्फाज हैं या 3 जुमले कह लें कि जो हम सुनते आ रहे हैं लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि है क्या है, तो बड़ी गहरी चीजें हैं। वो हमारी हर सरकारी बिल्डिंग पर भी लिखे होते हैं, सरकारी पाकिस्तान का जो एक मोनोग्राम है, निशान है, उस पर भी लिखे होते हैं, अदालत के बाहर भी लिखे होते हैं, हर जगह। और वो कौन से 3 जुमले हैं या 3 लफ्ज कह लें, 3 लफ्ज वो कौन से हैं? ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। और ये जुमले तो कायद के हैं, लेकिन दरअसल तो ये हमारे प्यारे पैगंबर के और कुरान की तालीमात हैं। आज हम इन पर ही गौर करेंगे कि हमें इन पर गौर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि हर जो पाकिस्तान की तरफ मंसूब इदारा है उस पर ये चीज लिखी होती है, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। हम कितना इस पर पूरा उतर रहे हैं? सबसे पहली चीज क्या है? ईमान है। वो हमें पता है तमाम चीजों की, तमाम आमाल की, हर चीज की बुनियाद ईमान है। अगर ईमान नहीं है तो फिर कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है, किसी अमल का भी कोई फायदा नहीं है, कोई अमल भी बेकार है। भले कितने कह लें कि बड़े से बड़ा हो, अच्छे से अच्छा अमल हो, ईमान के बगैर है तो उसका फायदा पड़ा, ईमान के बगैर उसका फायदा नहीं, जीरो। वो क्या है? जीरो है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, करोड़ मल्टीप्लाई बाय 0, 0, यानी कि जितने से भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 से ही मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ईमान की तो मिसाल ये है कि अगर ईमान नहीं है तो समझे फिर 0 0 है। हाँ, अगर ईमान है तो समझे उन 0 के साथ फिर 1 लग गया और सबकी वैल्यू बढ़ गई, सबकी वैल्यू। एक बंदा बड़े अच्छे काम करता चला जा रहा है, बड़े अच्छे काम करते चला जा रहा है, लेकिन ईमान के बगैर फायदा कोई नहीं, वो 0 0 है। ईमान ले आया, उसने 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, वो समझे सब काबिल। तो ईमान तो बुनियादी चीज है और कुरान करीम में जगह जगह ईमान का तज़किरा है, ईमान वालों का तज़किरा है, मोमिनीन का तज़किरा है। मोमिनीन के लिए बशारतें हैं, ईमान वालों के लिए बशारतें हैं, ईमान वालों के लिए दर्जात हैं, ईमान वालों के लिए अल्लाह की रजा का वादा है, ईमान वालों के लिए जन्नत का वादा है, ईमान वालों के लिए अल्लाह से मोहब्बत का वादा है।
کہ اللہ ان کو محبوب بنا لے گا, اللہ ان کو جنت الفردوس دے دے گا, اللہ ان کو بخش دے گا, اللہ ان کو جنت دے گا, اللہ ان کو باغات دے گا, اللہ ان کو انعامات, یہ سارے کے سارے تذکرے ہمیں قرآن کریم میں مل جاتے ہیں. اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بتایا جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے پھر ہم نے وہ بھی راستہ بتا دیا کہ اس کے لیے کیا راستہ, جہنم ہے, سزائیں, اللہ کی ناراضگی, وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستے دکھا دیے, تو شکر گزار بنو یا نہ شکر بنو, تمہاری مرضی ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کی مرضی ہے ایمان لے آئے, جس کی مرضی ہے کفر کرے, لیکن ساتھ میں ڈرا بھی دیا انا اعتدنا للظالمین نارا, کافروں کے لیے ہم نے پھر آگ تیار کر رکھی. وہدیناہ النجدین, ہم نے دو راستے دکھا دیے. کئی کہا اصحاب الیمین, اصحاب الیمین کے کون ہیں, وہ جنتی ہیں اور ان کے لیے یہ انعامات ہیں. سورہ واقعہ پڑھ لیں کہ کتنے انعامات کی فہرست اللہ نے گنوا دی. اور پھر ساتھ میں اصحاب الشمال, یہ جہنم والے ہیں, ان کے لیے کتنے قسم کے عذابات ہیں, اس کی بھی فہرست جاری کر دی. تو بنیادی چیز تو ہماری ہر عمل کی ایمان ہے. ہر عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان ہوگا, عمل میں کمی کوتاہی ہو گئی تو قابل قبول ہے, چل جائے گا, کہیں نہ کہیں جو وہ فٹ ہو جائے گا. لیکن اگر عمل تو بڑے اچھے ہیں, ایمان نہیں ہے تو وہ فٹ نہیں, وہ قابل قبول نہیں, اس کے چانسز ہی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے بڑی چیز تو کیا ہے, فیتھ ہے, ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایمان ہوگا دل میں تو پھر باقی چیزیں بھی, باقی اعمال ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے. اصل چیز تو ہمیں ایمان کا ہی بتلایا گیا, ایمان کا ہی سکھلایا گیا. مومن جو ہے اس کا ہی بتلایا گیا کہ مومن کی صفات یہ, ایمان آئے گا اس کے اندر اللہ کا ڈر بھی آئے گا, ایمان آئے گا اس کے اندر خشوع بھی آئے گا, اس کے اندر تقوی بھی آئے گا, ایمان آئے گا اس کے اندر صلہ رحمی بھی آئے گی, ایمان آئے گا اس کے اندر باقی صفات بھی آئیں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں گویا کہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی, ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی. ایمان ہوگا اس کے اندر کوئی خدا ترسی بھی ہوگی, اس کے اندر کوئی خوف خدا بھی ہوگا, اس کے اندر کوئی مخلوق کا بھی کوئی ڈر ہوگا, مخلوق کا بھی کوئی ترس ہوگا, خلق خدا کا بھی ترس ہوگا. جب ایمان کی رتی اندر ہوگی, ایمان کی رتی اندر ہوگی, وہ نماز کے لیے اٹھے گا جب ایمان کی رتی اندر ہوگی, وہ نیند قربان کرے گا جب ایمان اندر ہوگا, وہ اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کرے گا ایمان اندر ہوگا, وہ اپنے آفس کو لاک کرے گا, اپنے آفس کو چھوڑے گا جب ایمان اندر ہوگا, وہ اللہ کے گھر کی طرف آئے گا جب ایمان اندر, ایمان کی رتی کو رمق ہوگی تو سارے کام کرے گا. اب جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو کوئی لالچ ہے کہ نماز کے بعد کچھ ملے گا, ظاہری طور پر کوئی انعام ملے گا, کوئی پیسے ملیں گے, کوئی ریوارڈ ایسا ہے, کوئی قرآن دازی ہونے والی ہے جس میں ہمیں کچھ ملنے والا, کچھ نہیں. یہ آپ کو خود کیا چیز اٹھا کے لائی ہے, اپنے کام سے, اپنے گھر سے, اپنے آفس سے کیا چیز اٹھا کے لائی ہے, ایمان ہے اندر. اس نے کہا چلو نماز کے لیے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے منادی نے بلایا, چلو مسجد کی طرف, آپ اٹھ کر کے آ گئے. یہ بتاتا ہے کہ اندر ایمان ہے, اندر ایمان ہے. آپ اگر جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کو ایمان مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو قابو رکھو, جھوٹ نہیں بولو. اگر آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, آپ کا ایمان اس کو مجبور کرتا ہے, آپ کا ایمان یہ تعلیم دیتا ہے. آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے, کسی کو ظلم نہیں کرتے, آپ کسی کا حق نہیں کھاتے, آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, تو یہ آپ کا ایمان مجبور کرتا ہے, آپ کا ایمان مجبور کرتا ہے. آپ کے اندر خوف خدا ہے, مخلوق کا ڈر بعد میں, اللہ کا ڈر پہلے, اللہ کا ڈر پہلے. اور یہی منظر انگریز کے پاس یا گورے کے پاس یا ادھر بھی ہے, وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن وہاں مخلوق کا زیادہ ڈر شامل ہے, وہاں مخلوق کا زیادہ ڈر شامل ہے. مثال چوری اگر کم ہو رہی ہے یا اسی طرح کی وارداتیں کم ہو رہی ہیں, کوئی ڈکیتیاں کم ہو رہی ہیں, ایسا تو وہاں پہ ایک ڈر ہے, وہاں پہ ڈر ہے کیمرے کا, کیمرے کی آنکھ کا ڈر. غالباً وہاں پہ کسی اسٹیٹ کا, امریکہ کی شاید اسٹیٹ کا ہے کہ وہاں پہ 2 گھنٹے بجلی چلے گی اور اس میں تاریخ کی سب سے زیادہ وارداتیں ہیں. تو فرق تھوڑا سا فرق ہے,
कि किसी को रोकता है ईमान, अल्लाह का डर, और किसी को रोकता है मखलूक का और मशीनरी का डर। बाकी एक अलग बात है कि हमारे यहां भी अब ईमान की कमजोरी सतह पर ईमान इतना डाउन चला गया है कि यहां भी बहुत सारी मखलूक ऐसी है जो कैमरे से डर से रोकती है, कैमरे के डर से बाज आती है, वो एक अलग मामला। लेकिन असल चीज क्या है? ईमान। तो सबसे बुनियादी चीज क्या है? ईमान है। ईमान है तो हर चीज, हर बंद रास्ता या कह लें कि हर रुकावट आपके सामने ईमान डालता है। इस रास्ते पर आपने चलना है, इस पर नहीं चलना, ईमान ये रुकावटें खड़ी करता है। आपको भूखा रखता है, प्यासा रखता है, तो ईमान आपके दिल में खौफ है अल्लाह का, और यही वो खौफ है जो आपको अल्लाह के सामने खड़ा करता है, और यही वो खौफ है जिसके अल्लाह ने बशारत दी है, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, जन्नत उसका ठिकाना है। उसको अल्लाह का डर आ गया कि मैं झूठ बोलूंगा, मेरा अल्लाह नाराज होगा, मेरे प्यारे पैगंबर नाराज होंगे, प्यारे पैगंबर ने पसंद नहीं करना। ये डर गया, ये रुक गया झूठ से। ये झूठ बोल सकता था जान छुड़ाने के लिए, बहाना बनाने के लिए झूठ बोल सकता था, लेकिन इसके ईमान ने इसको रोक दिया कि कोई बात नहीं, सच बताओ, थोड़ा नुकसान बर्दाश्त करो। तो सबसे पहली चीज क्या है? ईमान अगर होगा, ईमान होगा तो सारे के सारे मामलात हमारे लिए आसान है। अच्छे कामों की तरफ बढ़ना आसान है, बुरे कामों से रुकना मुमकिन है, आसान है। लेकिन ईमान नहीं है तो फिर इसके बरक्स। तो सबसे पहली चीज क्या फरमाया कि ईमान। नंबर 2 इत्तेहाद, यूनिटी। अब ये भी जड़ है इत्तेहाद का होना। ये क्या है? अल्लाह के कुरान ने इसका हुक्म दिया। हमने तो कायद का फरमान सुना, ईमान इत्तेहाद तंजीम, लेकिन असल तो ये अल्लाह का हुक्म है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम फिरके फिरके ना हो, टुकड़े टुकड़े ना हो, टुकड़ों में ना बटो, आपस में मुनाफरत ना करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तबागजू वला तहासदू वला तदाबरू वकुनू या इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो आपस में बुग़्ज़ ना पालो, आपस में हसद ना करो, आपस में जो है वो एक दूसरे की पीठ पीछे जो है वो बैक बाइटिंग ना करो, गीबत ना करो, लेग पुलिंग ना करो, किसी की खींचातानी ना करो। वकुनू या इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। ये तो प्यारे पैगंबर ने सिखाया कि इत्तेहाद, तुम्हारी कुव्वत इत्तेहाद है, तुम्हारे इत्तेहाद और इत्तेफाक में बरकत है, तुम्हारे इत्तेहाद तुम्हारी कामयाबी का ज़ामिन है। अगर इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, तो फिर तो एक चलता फिरता एक हुजूम है, कोई कौम नहीं है। कौम इत्तेहाद से है, कौम इंज़िबात से है, कौम मिलने से है। जो मिल जाते हैं अल्लाह उनको उठाते हैं। दुनियावी मामलात के अंदर भी जो मिलकर चलते हैं वो तरक्की करते हैं। तो इत्तेहाद का होना, आपस में इत्तेफाक का होना, इत्तेहाद का होना, हाँ, लेकिन ये चीज जहन में रहे कि इत्तेहाद और इत्तेफाक अच्छे काम पर, बुरे काम पर नहीं, गलत काम पर नहीं, कि सारों ने मिलकर मशवरा कर लिया कि लाइट चोरी की इस्तेमाल करेंगे, सारे मोहल्ले ने मिलकर मशवरा कर लिया ये गलत काम, ये इत्तेफाक नहीं। इत्तेहाद अच्छे काम पर, अच्छी चीज पर, गलत काम पर नहीं। सारे मिलकर जो है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद कर लें कि किसी को मारेंगे, ये नहीं। इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, आपस की यगानगत हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, लेकिन अच्छी चीजों पर। इसको अल्लाह ने पसंद फरमाया। और बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि मोमिन तो एक बुनियाद या एक इमारत की तरह है, यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि बाज उनमें से एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जिस तरह ईंटें हम दीवारों पर लगाते हैं, तो अगर खाली ईंटें रख दें तो वो दीवार का क्या है? कुछ भी नहीं, उसके ऊपर आप छत नहीं खड़ी कर सकते। खाली अगर ईंटें आप लगा देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं, तो वो तो छत के काबिल है ही नहीं। उसमें क्या होगा? उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उसमें मटेरियल मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होंगी, उसमें मसाला ऐड होगा, फिर वो ईंट के दरमियान रखा जाएगा, फिर वो ईंट उसके साथ जुड़ेगी और फिर एक दूसरे से जुड़ेगी और जुड़ते जुड़ते दीवार बनेगी और दीवार बनते बनते छत बनेगी, घर बनेगा और कई बिल्डिंगें, कई मंजिलें बनेंगी, कई फ्लोर बनेंगे। क्या हुआ कि एक दूसरे से मिल गए, जुड़ गए और कहां से कहां बुलंदियों पर, आसमान को छूती बुलंदियों पर पहुंचे।
लेकिन यही अगर खाली रेत हो, खाली सीमेंट हो, खाली बजरी हो, खाली ईंटें हो, तो कुछ भी नहीं है। ये 10 फुट से ऊपर नहीं जा सकते, ये कहीं नहीं जा सकते, इनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता। तो इत्तेहाद का होना, मिलना, ये जरूरी है। आप अलैहिस्सलाम ने इसका दर्स दिया, असबियत का खात्मा किया कि तुम ऐसा ना करना कि फलां फलां के साथ फलां, नहीं, सारे को सारे मिल जाओ। ईमान तो तुम्हारा जो है एक सेंट्रल एक चीज है जिस पे तुमने सबने जमा होना है, ईमान की बुनियाद पर तुमने जमा होना है। और ऐसे हो जाना है, बल्कि एक दूसरी मिसाल में कि अल-मुमिनून का जसदुन वाहिद, कि मोमिन सारे एक जिस्म की मानिंद है। इनिश्तका आइनहु इनिश्तका कुल्लु, इनिश्तका रासुहु इनिश्तका कुल्लु, कि मोमिन तो सारे एक बदन की मानिंद है। जिस तरह एक बदन में आंख है, उसको तकलीफ होती है तो सारे बदन को पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। इसी तरह अगर सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, पेन होता है, हेडेक आता है, तो वो सारा जिस्म महसूस करता है। ये नहीं है सर का दर्द सर जाने, आंख का दर्द आंख जाने, पूरा जिस्म बेआराम होता है, पूरा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है और पूरा जिस्म उसके लिए तवज्जो करता है, उसके इलाज के लिए, उसकी दवा दारू के लिए, उस दर्द को खत्म करने के लिए। तो मोमिन ऐसा है, एक जिस्म की मानिंद है, कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई आंख है, कोई सर है, क्या है, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सबका आपस में लिंक है। कजसदुन वाहिद, एक को तकलीफ होती है तो ये नहीं इसकी तकलीफ है ये जाने, बल्कि सब दूसरा इसकी तकलीफ महसूस करता है। तो क्या करना है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, किसी का नुकसान हो गया तो साथ वाले को, हमसाये को तकलीफ होनी चाहिए, उसको उसका गम, उसका दर्द, उसमें उसको दर्द में उसके साथ शरीक होना चाहिए, उसके गम में, उसकी परेशानी में उसको शरीक होना चाहिए। तो ये इत्तेहाद है। ये क्या है, इत्तेहाद है। इत्तेहाद में बसावत आपको एक स्टेप बैक करना पड़े, कर ले इत्तेहाद को कायम रखने के लिए, यूनिटी को कायम रखने के लिए, किसी काम को आगे चलाने के लिए। तो ये क्या है, इत्तेहाद का होना जरूरी है। और ये इस्लामी तालीमात, कुरान का हुक्म, प्यारे पैगंबर का फरमान। तो नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इत्तेहाद। इत्तेहाद की फिर बरकतें आपको पता है, इत्तेहाद से ही कौमें तरक्की करती है, इत्तेहाद से ही बंदा आगे बढ़ता है। नंबर 3 तंजीम, नजम या तंजीम, डिसिप्लिन, बहुत जरूरी चीज जिसको शायद हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और बहुत ज्यादा उसको जो है वो कह लें कि एक नाकाबिले तवज्जो समझते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अब वो डिसिप्लिन घर हो, ऑफिस हो, रोड हो, जहां पर भी हो, अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो समझें कि हम एक तरक्की पजीर या तरक्की की तरफ गामजन शख्स हैं। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो फिर समझें कि हम तरक्की नहीं कर सकते। और ये डिसिप्लिन हमें हमारा दीन सिखाता है। कायदे आजम का फरमान बाद में, लेकिन हमारा दीन कुरान पहले। सबसे बड़ी मिसाल तो यही नमाज ले ले, ये डिसिप्लिन की एक मिसाल है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि मोमिनों पर नमाज अपने औकात मुकर्ररा पर फर्ज की गई है। फजर का टाइम है, जोहर का टाइम है, असर का टाइम है, मगरिब का टाइम है, इशा का टाइम है, जुमे का टाइम है। अब ये अपने औकात मुकर्ररा पर इनका फर्ज होना गोया कि हमें डिसिप्लिन की तालीम दी गई। डिसिप्लिन की कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान और जमीन की पैदाइश का जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया कि खलक़ अस्समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल, आसमान और जमीन को अल्लाह ने 6 दिनों में पैदा किया। अब ये अल्लाह का 6 दिनों में पैदा करना, हालांकि अल्लाह की पावर क्या है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, मालिक कुन कहता है, फयकुन हो जाता है। अल्लाह के इरादे का नाम वजूद है, मालिक के इरादे का नाम वजूद है। लेकिन ये क्यों किया कि 6 दिनों में, कहीं पे 7 दिनों में आसमान को और जमीन को पैदा किया? ये मेरे और आपके लिए सबक है, मुझे और आपको डिसिप्लिन सिखाया कि कोई भी काम डिसिप्लिन के तहत, बाकायदा एक मैनेजमेंट के तहत, बाकायदा एक स्लो तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये हमें सिखाने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि खलक़ अस्समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, कि अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान और जमीन को पैदा किया। तो ये जो कुरानी मिसालें हैं, कुरान के अंदर मौजूद है। नमाज के औकात हमारा बेहतरीन डिसिप्लिन है, हमारा हज बेहतरीन डिसिप्लिन है, हमारा उम्रा एक डिसिप्लिन की अलामत है, हमारी जितनी भी बातें, हमारा रमजान का रोजा पूरा महीना रोजे का टाइम है, सहरी का टाइम, इफ्तार का टाइम, यह डिसिप्लिन है, अल्लाह ने हमें दिया है। तो ये सारा का सारा हमें तो इस्लाम ने सिखाया, हमें इस्लाम ने सिखाया।
लेकिन हमारी कह लें कि एक बदबख्ती कह लें, या हमारी एक कमजोरी कह लें, या हमारी क्या कह सकते हैं, इसे शून्य किस्मत कह लें, कि हमने इसको छोड़ दिया है, गैर ने इसको अपना लिया है, वो तरक्की पजीर हो गया, तरक्की में चला गया, और हम इसको छोड़कर जो है वो हम जवाल पजीर हो गए। हालांकि ये तो हमारी तालीम का हिस्सा है, ये कह लें हमारी भुट्टी में है। हमारा कुरान, हमारे कुरान की तालीमात ये हमारी भुट्टी के अंदर है, हमारी भुट्टी में है। तो डिसिप्लिन तो हमें ज्यादा फॉलो करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन का ज्यादा जो है वो पाबंद होना चाहिए, हमें नज़्म और ज़ब्त का ज्यादा मुजाहरा करना चाहिए कि हमें किसी जगह पर रश का सामना है तो फौरन डिसिप्लिन को मेंटेन रखना चाहिए कि आप रोड पे खड़े हैं, इशारा बंद है, ट्रैफिक जाम है, लंबी कतारें लग गई हैं, अब उसका तकाजा तो क्या है कि हम बिल्कुल अपनी लेन में खड़े रहें, अपनी लेन में खड़े रहें, बजाय इसके कि दाएं निकले बाएं निकले और रास्ता जो है उसको हम स्टक कर दे और सारे लोग खड़े हो। ये क्या है, हमारे दीन की तालीमात के खिलाफ। किसी इदारे में चले जाते हैं, सरकारी इदारे में चले जाते हैं, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाएंगे, काम जल्दी भी हो जाएगा, और एक बाकायदा एक कह लें कि एक शो भी होगा कि वाकई कोई समझदार, पढ़े लिखे या तरबियत याफ्ता जो है वो अफराद। इसी तरह कहीं पे भी चले जाएं तो ये डिसिप्लिन जो है वो हमारे इस्लाम का हिस्सा है। ये कोई ऐसी ऊपर से उतरी या कोई अंग्रेज की जो है वो नाफिज करदा चीजें नहीं है, या उनके लिए नहीं है, ये सबसे पहले हमारे लिए है। ये डिसिप्लिन हमारे लिए है। डिसिप्लिन बेसिकली होता क्या है कि थोड़ी देर अपने आप को काबू कर ले, थोड़ी देर अपने आप को काबू कर लेना, कंट्रोल्ड बिहेवियर, थोड़ी देर अपने आप को लाइन में थोड़ा सा लगना है, थोड़ा सा अपने आप को लगेगा, मुश्किल होगा, लेकिन अपने आप को काबू किया तो बहुत सारे झंझटों से। कितनी दफा ऐसा होता है आप इशारे पर नहीं रुके कि चलो जल्दी से निकल जाऊंगा, उधर से दूसरा आ गया, ये क्या हो गया, हादसा हो गया, जाने चली गई। किस वजह से कि एक छोटा सा एक कानून था, छोटी सी एक तरबियत थी जिसको नहीं अपनाया, उसकी वजह से जाने चली गई। और वो क्या था, डिसिप्लिन। तो ये हमारे दीन का हिस्सा है, हमें दीन ने सिखाया है, हमें दीन ने सिखाया है, और पहले डिसिप्लिन के मुखातब हम हैं, बाकी कोई करता है नहीं करना, ये तो हमें करना चाहिए कि मेरे प्यारे पैगंबर का तरीका है, आप अलैहिस्सलाम के सहाबा का तरीका है, कुरान की तालीमात है। हम देख रहे हैं कि फलां ऐसा करता है, हम खुद बयान भी करते हैं कि उस मुल्क में इतना डिसिप्लिन है, इतना डिसिप्लिन है, बल्कि कई दफा तो ऐसा भी सुनने में आता है जो पाकिस्तानी बाहर हो तो वहां पे पूरा फॉलो करते हैं डिसिप्लिन को, पाकिस्तान में आते हैं तो वो भी फिर वैसे। हालांकि सबसे पहले ये हमारी जिम्मेदारी, हमें चाहिए कि हम इसको फॉलो करें, और ये कुरान की तालीमात का हिस्सा है। तो खैर 3 चीजें जो मैंने पहले अर्ज किया कि बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, लेकिन इसको हमने अमल में लाना है। जाहिरी तौर पर कायदे आजम मरहूम की ये बातें हैं, लेकिन असल में ये कुरान की और प्यारे पैगंबर की तालीमात का हिस्सा है। इसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना। कायद के जो फरमान है, कायद ने जो पाकिस्तान बनाया था, नजरिया पाकिस्तान दिया, फिर पाकिस्तान दिया, उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो जब उनसे पूछा गया कि इसका आइन और कानून क्या होगा, तो कायद ने खुद फरमाया था कि इसमें आइन की क्या जरूरत है, 1400 साल पहले इसके लिए आइन नाजिल हो चुका है, और वो कुरान है। वो क्या है, कुरान है। तो कायदे आजम खुद मानते थे कि पाकिस्तान को जिस आइन की जरूरत है वो कुरान करीम है, और हकीकत भी यही, हकीकत भी आज हमने कायद की तस्वीरें लगाई, बड़ी बड़ी तस्वीरें हर इदारे में लगी हैं, उनके सरों पे लगी हुई हैं, पीछे लगी हुई हैं, उनके बैज लगे हुए हैं, और बड़े बड़े बैनर फ्लैक्स लगे हुए हैं, लेकिन हम कायद की बातें मानते नहीं है। कायद की बातें, अगर उनकी बातें मानते, वो भी कुरान की बातें करते थे, वो भी इस्लाम की बातें करते थे, इस्लाम की तालीमात। तो इसलिए कायदे आजम को हाँ इस्तेमाल किया जाता है, कायदे आजम को, कायदे आजम का इस्तेमाल है आजकल, उसकी तस्वीर का इस्तेमाल है, उसके नोट का इस्तेमाल है, वो चलता है। कायद की बातें बस कुछ डाल दी हैं, जिसकी वजह से फिर हम जिल्लत में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, बदनामी में जा रहे हैं, इस वजह से कि जो हमें बुनियादी चीजें दी गई थी वो हमने इग्नोर कर दी। तो इसलिए ये चीजें ऐसी हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनियावी लिहाज से भी इंशाअल्लाह आपका लेवल अप होगा, आप जो है वो तरक्की करेंगे, और उखरवी लिहाज से तो है ही है। तो ये चीजें ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये क्या है, हमारी दीन शरीयत का हिस्सा है, और कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह इसको हम फॉलो करेंगे, और हर जगह इसको अप्लाई करेंगे, अपने ईमान की तरक्की का सोचेंगे, अपने इत्तेहाद की कोशिश करेंगे, अपने मुल्क की खातिर अपने मसले की लड़ाइयां, अपनी सियासी लड़ाइयां छोड़ेंगे। ज्यादा इंतशार कब होता है, जब हम मसले को जो है वो प्रवोक करते हैं, उसको मसले की लेवल पे या जब वो सियासी लेवल पे, ज्यादातर लड़ाइयां क्या है, सियासी है।
अगर हम अपने मुल्क की खातिर इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हमारा मुल्क किसी सिमत गामजन हो सकता है। तो इसलिए इस 14 अगस्त के हवाले से यही पैगाम है, एक तो इन 3 चीजों पर हम कोशिश करें, इन पर अमल करें। दूसरा, अपने मुल्क की खातिर अपनी अना को कुर्बान कर दें, अपनी सियासी लड़ाइयों को कम कर दें। सियासी इख्तिलाफात रखें, ये कभी खत्म नहीं होंगे, मजहबी इख्तिलाफात भी कभी खत्म नहीं होंगे। अगर कोई बंदा कहता है ना कि सारे सियासी इख्तिलाफात खत्म हो एक हो जाए, सारे मसले की इख्तिलाफात खत्म हो एक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कंट्रोल अपने आप को किया जा सकता है कि आप इस इख्तिलाफ भी रखें और एहतराम भी रखें। इख्तिलाफ एहतराम के साथ हो सकता है और ये मुमकिन है, इसलिए इख्तिलाफ को खत्म करने की कोशिश न करें, एहतराम को बीच में ले आए तो इंशाअल्लाह इंतशार खत्म हो जाएगा। तो अपने मुल्क की बका के खातिर, अपने मुल्क की इज्जत के खातिर हम अहद करते हैं और सब मिलकर अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी सियासी अना को कुर्बान करेंगे, सियासी लड़ाइयों को पसे पुश डालेंगे, अपने मसाइल की लड़ाइयां, जिसका जो मसला था उस पर चलता रहे, लेकिन किसी को काफिर, किसी को गालियां, किसी को ये नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर देखें दीन भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।